डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने 20 दिसंबर को डीएनपीए डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 के विजेताओं की घोषणा की। रविवार को घोषित किए गए विजेताओं को 20 जनवरी को ही नई दिल्ली में डीएनपीए डिजिटल कॉन्क्लेव और डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड्स दिए गए। निर्णायक मंडल ने जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अवार्ड के लिए चुना था, उनमें उपभोक्ता मामलों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का वन नेशन वन राशन कार्ड, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कोविन ऐप, वित्तीय सेवा विभाग की प्रधानमंत्री जन धन योजना, राजस्व विभाग का जीएसटी वित्त मंत्रालय, दिल्ली पुलिस का हिम्मत ऐप, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कैंपा ऐप, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय का ई गवर्नमेंट पोर्टल और डीजी लॉकर के साथ एनसीईआरटी के तहत दीक्षा प्लेटफॉर्म और महिला विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर ऐप ने डिजिटल इम्पैक्ट में अवार्ड जीता। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का कोविन ऐप, ई गवर्नेंस पोर्टल और जीएसटी पोर्टल प्रमुख रहा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी 2 अवार्ड दिए गए। आपको बता दें कि डीएनपीए देश के 17 शीर्ष डिजिटल समाचार प्रकाशकों का संगठन है। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के सांसद और पूर्व संचार मंत्री पॉल फ्लेचर और भारत के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर शामिल हुए। इन लोगों ने आने वाले दिनों में डिजिटल न्यूज के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी बताया। इसके साथ ही भारत की तमाम न्यूज एजेंसीज के वरिष्ठ पत्रकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। इस कार्यक्रम में डीएनपीए के चेयरमैन और अमर उजाला के एमडी तन्मय माहेश्वरी ने कहा कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और एसोसिएशंस डिजिटल मीडिया की ग्रोथ को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल न्यूज का इकोसिस्टम बनाने के लिए है। माहेश्वरी ने आगे कहा कि हमारा मानना है कि वेरीफाइड न्यूज इकोसिस्टम हमारे लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार है। ऐसे में हमें अपना पूरा प्रयास इस इकोसिस्टम को विकसित करने में लगाना चाहिए। behalf of DNPA, I would like to welcome each one of you to this inaugural conference on the future of digital media and Digital Impact Awards. Thank you, Anurag ji, for your kind words. Digital news publishers dedicated to promote the growth of digital news ecosystem in India. We believe that a verified news ecosystem is a fundamental pillar of our democracy, and all efforts must be put to promote as well as nurture this ecosystem. So, why was DNPA made? DNPA was made just to do one thing: promote the digital news ecosystem, promote the verified news culture, and to fight against the fake news. We regularly share our collective experiences and inputs through our consultation papers. This is done on various matters linked to the policy as well as the big tech industry. Also provide a constructive platform for an open dialogue between all the stakeholders in this entire ecosystem. We at DNPA believe that we have to coexist, but at the same time, our values cannot be compromised. Journalism has been at the heart of our organizations, and we always wanted to be that way. We are blessed to be a part of an industry that has a power to educate and empower millions of minds. We take utmost pride in our work, and I know that each one of us in this room is linked to this industry in some form or the other. And it is our duty not just to protect, but also to nurture and grow the digital ecosystem, just like we have grown the print and television ecosystems. And this is the reason why DNPA was born. We embrace and promote the digital innovations which are helping to build our nation in a very different way. Prime Minister Modi's vision of Digital India has been embraced by one and all.
Today evening, we would celebrate the digital turns which our nation has taken and has empowered millions of people in the country. So in our endeavor to work towards our goal, today we have with us so many brilliant minds. Some of them will be a part of the panel speakers, and some of them will be a part of the audiences. Without all of you, without your love, without your support, this event would not have been possible. So I would like all of you to have a big round of applause for all of us. Every journalist, in fact, everyone who is a part of this digital media news ecosystem, and in fact, the news media ecosystem, has a responsibility to change the ignorance that covers the world. I would like to dedicate this day to nothing but the truth, as truth is always the strongest argument. So with this, I would like to hand over the stage to all of you, to all the eminent guests. And on behalf of all our 17 members of DNPA, I would like to thank each one of you for taking out time and being a part of this initiative. तन्मय महेश्वरी ने आगे कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ डिजिटल इकोसिस्टम की रक्षा ही न करें, बल्कि प्रिंट और टेलीविजन इकोसिस्टम की तरह डिजिटल को बाकायदा बढ़ावा भी दें। आपको बता दें कि डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड्स का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी में होने वाले ऐसे नवाचार को प्रोत्साहित करना है जिससे नागरिकों का जीवन बेहतर होता हो और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिले। मीडिया डीएनपीए इम्पैक्ट अवार्ड्स 2023 के माध्यम से ऐसे आधुनिक डिजिटल प्रयासों को सम्मानित किया गया है जिनके जरिए नागरिकों को अलग अलग क्षेत्रों में त्वरित सेवाएं मिल रही हैं। डीएनपीए दिल्ली स्थित संगठन है। देश के 17 अग्रणी समाचार प्रकाशकों की डिजिटल इकाइयां इस संगठन का हिस्सा हैं। ये संगठन ऐसा निष्पक्ष निकाय है जो डिजिटल परिवेश में समाचार संगठनों और बड़ी टेक कंपनियों के बीच समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। कुल 8 श्रेणियों में अवार्ड्स की घोषणा की गई और विजेताओं को चुनने के लिए जो शीर्ष निर्णायक मंडल बनाया गया था उसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने की। निर्णायक मंडल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व चेयरमैन रवि राजन, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय की पूर्व सचिव अरुणा शर्मा, बिजनेस वर्ल्ड और एक्सचेंज फॉर मीडिया के चेयरमैन और प्रधान संपादक डॉक्टर अनुराग बत्रा, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक संजय द्विवेदी, RD&X नेटवर्क के सह संस्थापक और चेयरमैन आशीष भसीन, टेक महिंद्रा के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर और हेड ऑफ ग्रोथ डॉक्टर जगदीश मित्रा शामिल हुए। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।